ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडेक्स। तो okay, so suppose we have list. What we have list? Suppose this is a list, and suppose I want to print or find out the index of a particular number. Okay, then you can write x equal to L dot index. Okay, so if you write index, suppose I write 20. Okay, so what it will return? If the element available in the list, if the element is available in the list, it return the index of particular value. Okay, so ये क्या करेगा? तो मैं क्या करेगा? Return index of 20. Okay, so what is the index of 20? Prajakta, what is the index of 20? Prajakta, yes sir. 20 का इंडेक्स क्या है? इंडेक्स वैल्यू ऑफ 20 Sir, 27. 0 1 2 3 4 5 6 7. Yeah, correct. Okay, so it return. So यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 7 and 7 will stored in x. Okay, 7 किस में स्टोर हो जाएगा? x में स्टोर हो जाएगा. So now we can print x equal to, ठीक है, now we get x equal to 7. ठीक है, so suppose if we type 200 is available in the list. Available है क्या? No, sir. No. So what did it return? Return error. So if the particular value is not available, then it return error. Okay, so return the index of a value. ठीक है, if value is available in a list. So suppose मुझे इस error को remove करना है. Okay, so what we can say, what we can do is 200 in is one operator actually in L. So ये क्या करेगा? चेक करेगा. If 200 in L, then what it return? It return x, and then it will print x. Otherwise, we can say else print number not available. Okay. So if we run this code, then it will return number not available. इसका मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या वर्क कर रहा हूँ? Suppose I want to find one number inside a list. Okay. Suppose मुझे क्या करना है? कोई नंबर फाइंड आउट करना है. Okay. इसको पहले अपन नॉर्मली करते हैं. This one. Okay. Now let's execute. Now program to find a number. सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है. Program to find a number. Program to find whether a number is available in the list or not. ठीक है, if available, return print its position.
Okay, so what the question? Program to find whether a number is available in the list or not. If available, print its position. So first thing हमें find out करना है that number is available or not. Okay, so हम लोग कैसे करेंगे? Okay, suppose we have list. Now we take the number from the user. Enter a number to the search. Okay, so we'll put one number up. Now I want to find out that n is available in the list or not. First thing. So if there is one operator in, so n is used to find a particular letter in a sequence. तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, डेटा वैल्यूज, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज. वन इज द सीक्वेंस वैल्यू और द सेकंड वन इज द नॉर्मल कांस्टेंट. सीक्वेंस हम लोग उसको बोलेंगे जिसके अंदर क्या है, इंडेक्सेस. ठीक है, अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, वो भी क्या है, इज ए काइंड ऑफ सीक्वेंस. टपल पढ़ेंगे, वो भी एक सीक्वेंस है. ठीक है, सो सीक्वेंस इट मींस if the particular values contain more than one particular group contain more than one values, then we can say it's a sequence. So sequence can be used. So we can use the in operator in sequence. So if n in L, so ये क्या रिटर्न करेगा? If n in L, then it return true or false. ये सर्च करेगा कि n L में है क्या. ठीक है, so यदि ये है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. If it's true, then we can find out the index of the particular number. Okay, so what we'll do, that x equal to L dot index. Okay, what is the method we use? Index. So L dot index. Okay, किसका इंडेक्स चाहिए मुझे? इस एल का चाहिए. ओके, एंड हियर वी प्रिंट. यहीं पर हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं. प्रिंट दैट and the found its position okay, what we can see x else number not found. Okay, number not found. Okay, ये clear है? So we use one in operator new. L dot index return the position of the particular number inside a list. So what? Okay, print एक statement आगे चलेगा. Enter number to be set inside. So suppose I enter 12. Okay, number found is position 4. So what is the position? So normally we find out the position 1, 2, 3, 4, 5. Okay, but यहाँ पर क्या है 4 because it return the index. So if you want to find out the exact position, so we can add +1. Okay, because position is a number starting from 1. 1, 2, 3, 4, 5. Position normally हम लोग जब यूज करते हैं तो position है. Suppose to enter 50. Now 50 is available in the list. Number not available. Okay, clear? ये clear है? Yes, sir. Now next thing, next function है आपके पास extend. Okay, now use one extend.
suppose we have L1, 2, 3, 4, L2 equal to 5, 6, 8. Okay. So now, suppose I want to extend the list. I want to combine both lists. Suppose I use 1 and 3 and 1 plus L. So if you add two lists, now you see what happens. Print L3. Okay. So 2, 3, 4, 5, 6. The same task we can do by using extend for L2. Okay. L1 dot L2 string. Okay. So it extend L1 not it will not create one extra L1 को ही इसमें extend कर okay like this यहाँ पर क्या हुआ that we create one extra list so the same can be do by using ESA L1 यहाँ पर so list can be extended by another list so if we have two lists and we want to combine this so we can do like this suppose L1 plus L2 and then we assign the new list into the L1 or we can use L1 dot extend L2 L1 dot extend L2 okay so there are two methods that we can add to list and then assign the list value inside the same list ठीक है so equivalent है दोनों either we can use extend or we can use plus दोनों है ठीक है so a list can be extended by another list ये clear है ये clear है Yes, sir. ठीक है दोनों लिस्ट कंबाइन हो जाते तो यहाँ पर हमने नॉर्मल प्लस के थ्रू कर लिया यहाँ पर क्या किया फंक्शन यूज किया so L1 को extend किया now we use L1 dot extend if you use L2 dot extend L1 then क्या होगा बताओ सर मे बी पहले 5, 6, 8 प्रिंट होगा फिर 1 में 2, 3, 4. यस करेक्ट नाउ L2 को ये एक्सटेंड करेगा मतलब L2 में L1 प्लस करेगा ठीक तो 5 6 8 पहले आ जाएगा 2 3 4 उसके बाद ठीक है 5 6 8 2 3 4 ओके सेम यहाँ पर एक थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि सपोज मैं इसको इंडेक्स पर्टिकुलर हमारे पास फंक्शन था सपोज वी हैव 20 इन टू लोकेशंस एक 20 यहाँ पर है और एक 20 यहाँ पर ठीक है सो देयर आर टू 20s सो अब ये किसका इंडेक्स रिटर्न करेगा बताओ जो पहले वाला है जो पहले मिलेगा करेक्ट है क्योंकि इट विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो इंडेक्स और जैसे ही उसको 20 मिलता है देन इट विल स्टॉप देयर सर्च करना स्टॉप कर देगा बिकॉज द 20 इज अवेलेबल इन अ लिस्ट ठीक है तो जब हम इसको रन करिए तो वी गेट x इक्वल टू 3 दिस वन ओके so in case the multiple values available in a list so it will return the index of the first value from the left side okay so there are two 20s so किसका return किया first one ठीक है the next thing okay you clear extend now the next function is remove okay
सो अभी हमने देखा था एलिमेंट डिलीट करने के लिए, दोनों ही मेथड कैसी थी, टू डिलीट एलिमेंट बाय यूजिंग इंडेक्स। ओके, डेल भी इंडेक्स के थ्रू डिलीट कर रहा था एंड पॉप भी इंडेक्स के थ्रू डिलीट कर रहा था। नाउ कैन वी डिलीट द एलिमेंट बाय यूजिंग वैल्यू। सपोज मुझे 20 डिलीट करना है, मुझे नहीं पता कि 20 का इंडेक्स कहाँ पर है। ओके, so the next function is the remove. So delete element by its value. Okay, so element मुझे delete करना है, so जैसे हमने सर्च किया था, in the same case now we can delete. Suppose we have list and I want to delete 20, so I can write l dot remove what 20. Okay, then enter. So remove is a function used to delete the element by its value. So 20 को उसने delete कर दिया. So now suppose we have two 20s. किसको delete करेगा? ठीक है, सेम केस जैसे इंडेक्स में हो रहा था, इन द सेम केस इट विल डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट। इफ सपोज द एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल देन डिलीट जनरेट एरर। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, द सेम मेथड क्या करेंगे बताओ। सपोज मुझे एलिमेंट डिलीट करना है एंड ये वैल्यू एरर नहीं आनी चाहिए, तो क्या करेंगे श्रीनिवास प्रोजेक्ट, इस एरर को रिमूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसको डिलीट करना है? सर लास्ट वाले 20 को। मैंने तो 200 लिखा हुआ है। ओके, सो ये 200 क्या है, वैल्यू है ना? यस सर। सो बिफोर deletion we check that value is available or not. So if 200 in L, then delete, otherwise don't delete. ठीक है, तो अब क्या होगा, it will say there is no error. So हमने क्या किया, before delete. So if you want to delete element by value, so we check that element available in the list or not. If available, then we delete, otherwise we don't delete. Okay, so the same we can take value from the, इससे ले सकते हैं यूजर से। ठीक है, तो जैसे आपके पास इंडेक्स वाला था, इन द सेम केस वी कैन डू बाय यूजिंग, ठीक है, delete value from the list, okay, so we take the value from the user. Okay, so we check if n in l, okay, l क्या है आपका, तो लिस्ट है, then we delete, what we delete, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे नया, what do we write here, स्नेहा यस सर। क्या लिखेंगे, वैल्यू कौन सी वैल्यू, प्राजक्ता, सर जो हमें रिमूव करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, श्यामा, सर हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं 20 या फिर 200 कोई भी।
नहीं, अगर देखो, हमने नो 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 नो, हमें क्या करना है, हम देन तो वो नंबर इनपुट ले रहे हैं ना, इंटर नंबर टू बी डिलीटेड। यहाँ पर यूजर एंटर करेगा कि उसको क्या नंबर डिलीट करना है, और वो नंबर किसके अंदर स्टोर हो रहा है, किसके सर अंदर स्टोर लिस्ट हो रहा में है, एन के अंदर स्टोर हो रहा है। लिस्ट लिस्ट इज ए डिफरेंट थिंग, लिस्ट आपके पास कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन से हमें किसको डिलीट करना है, वी वांट टू डिलीट एन, क्योंकि जो नंबर डिलीट करेंगे वो हम लोग इनपुट करेंगे, और इनपुट करेंगे तो वो नंबर किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस एन के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, हमने जो नंबर इनपुट किया वो नंबर किसके अंदर जा रहा है, एन के अंदर स्टोर हो रहा है ना। ये तो आपके पास लिस्ट है, कलेक्शन है। इस कलेक्शन से हमें एक नंबर डिलीट करना है, और वो नंबर हम लोग यूजर से इंटर करेगा कि उसको कौन सा नंबर डिलीट करना है। इट मे पॉसिबल कि 23, ओके, हो सकता हो कि श्यामा को 23 डिलीट करना है, ओके, स्नेहा को 20 डिलीट करना है, श्रीनिवास को 9 डिलीट करना है, ओके, प्राजक्ता को 200 डिलीट करना है। इट मे पॉसिबल। सो हम लोग क्या करेंगे, नंबर इनपुट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर इनपुट ले रहे हैं, और नंबर जो इनपुट ले रहे हैं वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, एन के अंदर। ओके, सो इस एन को हमने क्या किया, चेक किया कि जो भी नंबर हम डिलीट कर रहे हैं वो एन के अंदर है। सो क्या एन इस लिस्ट में है, इफ लिस्ट में है तो किसको रिमूव करना है, एन को रिमूव करना है। ठीक है, ये क्लियर है। यस सर। प्रोजेक्ट था ऊपर भी, फिर हमने ऐसे ही किया था। ये क्लियर है क्या, ये तुम्हें नहीं फिर पता होगा, इसमें भी डाउट रही होगी। सो ये नंबर हमने सर्च करना था, जो सर्च करना था वो हमने यूजर से ले लिया। ठीक है, और किसके अंदर स्टोर किया, एन के अंदर स्टोर किया। फिर इसको चेक किया दैट एन नंबर एल में अवेलेबल है क्या। इफ अवेलेबल है तो एन का इंडेक्स रिटर्न कर दो। एन का इंडेक्स मतलब जो भी नंबर यूजर ने एंटर किए हैं, तो जो भी नंबर जहाँ भी अवेलेबल होगा इट विल रिटर्न देयर इंडेक्स। जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा भी यदि कुछ डाउट होता है तो क्लियर कर लो, क्योंकि आगे प्रोग्राम और कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। नंबर हमने इनपुट किया, किसके अंदर स्टोर हुआ, एन के अंदर। फिर इसने चेक किया, एक्चुअली जो प्रोग्राम है ना ऐसे सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये क्या बना देगा, एक लिस्ट बना के रख देगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में यूजर इनपुट करेगा, वो नंबर कहाँ से चला गया, एन के अंदर चला गया। ओके, फिर एन यहाँ पर चेक होगा, एंड देन एल डॉट रिमूव एंड। ठीक है, फिर ये देखना है तो हम लोग कल वाला जो मैथ होता कंप्यूटर। ओके, तो अभी देखो, तो सबसे पहले लिस्ट आया, तो लिस्ट बन गया। ओके, यहाँ पर लिस्ट है एल, एल इट मीन्स वेरिएबल है हमारा। ओके, एक लिस्ट बना, इसके अंदर सारे वैल्यूज हैं। ओके, एंड देन हमने किया सपोज एल डॉट रिमूव 10। ओके, क्या कर दिया इसने, 10 को रिमूव किया, नाउ इट जनरेट है, तो 10 हमारे पास क्या डिलीट किया, 20। ओके, तो 20 डिलीट हो गया, लास्ट वाला 20 बचा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, आपका प्रोग्राम वन बाय वन सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। ओके, यहाँ पर आपका लिस्ट प्रिंट होगी, यहाँ पर हम लोग सपोज इनपुट लिखें, टेक्स्ट इक्वल टू इनपुट इंटर। ओके, सो इट विल वेट, यहाँ पर ये एक्स के अंदर है। तो ऐसे प्रोग्राम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, जैसे एरो दिख रहा है ना आपको, स्टेटमेंट पहले लाइन वन एग्जीक्यूट होगी, फिर टू एग्जीक्यूट होगी, थ्री एग्जीक्यूट होगी, फोर एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर इफ होता है, वहाँ पर कंडीशन हो जाती है।
कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो ये फर्स्ट इनपुट होगा, फिर ये चेक होगा, देन ये रिमूव करेगा एंड ओके। ठीक है, Yes, sir. नाउ नेक्स्ट थिंग, क्लियर। ओके, so to delete all elements from the list and make the list empty, क्या करेगा, लिस्ट को एम्प्टी करेगा। ओके, so next is clear। Yes, to delete all elements, list empty। ओके, तो सपोज हमारे पास ये लिस्ट है, देन आई यूज एल डॉट क्लियर, प्रिंट, क्या प्रिंट हुआ, एम्प्टी लिस्ट, मतलब उसने सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए। ठीक है, सारे एलिमेंट क्या हो गए, डिलीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट काउंट, काउंट क्या करेगा, इट विल काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज, काउंट टू काउंट काउंट नंबर ऑफ, क्या लिखें, टू काउंट वैल्यू, जिससे हमारे पास क्या था, यहाँ पर 22 टाइम्स था। ओके, so if you use l dot count 20, okay, x equal to, so we can say कि x, ओके, तो 20 कितने टाइम लिस्ट में अवेलेबल है, 2 टाइम। ओके, सपोज वी राइट 200, so what it return 0। ठीक है, if value not available, not available, return 0। okay, now so 20 return to the use 200, okay, return 0, 200 not available। okay, value not available, so in this case return 0। okay, clear है, कर सकते हैं स्नेहा, Yes, sir. ये क्लियर है काउंट, काउंट में कुछ डाउट है क्या, No, sir. श्रीनिवास, श्रीनिवास, okay, so the next thing, that is sort। okay, sort it means arrange elements in ascending order। okay, so if you use l dot sort, okay, and we print l, okay, so to arrange the element in ascending order we use sort, simple। okay, so the sort can also be used to arrange element in descending order, in descending order, so then we write
reverse equal to true. Okay, what do we write? Inside sort we write reverse equal to true. Okay, so ये क्या करेगा? लिस्ट को शॉर्ट कर देगा. Okay, so the next is to reverse list. Like list को reverse करना है. Suppose we have one list. Now this one. Okay, list को मुझे reverse करना है. Print. Okay, so ये क्या करेगा? All elements. Okay, it will reverse all the elements. So 20 आपका फर्स्ट रो एलिमेंट हो गया, 9 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, 12 यहाँ पर आ गया. So it reverse the all the elements. ठीक है? ओके, चलो बाकी कल देखेंगे. बाय. Bye, sir. बाय.